السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما. رب زدني علما وفهما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام تعریف تو حمد و ثنا رب ذوالجلالس کنت. بیاسن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تہندس آل اسلامت. تریمس پارکس آغازس مز پڑھو اسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرو سارنی مومنن یہ ترغیباً حکم کہ اے مومنو اللہ تبارک و تعالیٰ سن وتہ مز کریو خرچ. سہ دہ ین برونٹ یا دہس مز نہ کانٛہہ بائی یا کانٛہہ خرید و فروخت چلہِ. ام پتہ کریو اللہ تبارک و تعالیٰ پنن تعارف آیت الکرسی مز اور آیت الکرسی پتہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ پن قدرت تمچ وضاحت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کت کٹ یتھ کائناتس مز تصرف کرن اور وہ کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. آزک یم زن آیات یمن آیاتن مز بی اکہ ساتنس مومنن انفاق فی سبیل اللہ ترغیب آمز دن. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سمز خرچ اللہ تعالیٰ سن وتہ مز خرچ کرنے بی اکہ لٹ آمز ترغیب دن. یا دمن لفظن مز ونو اس کہ یس اللہ تبارک و تعالیٰ پتمن آیاتن مز مضمون اس برونٹ کئی تھو کہ اکہ دہ تہ مرت بھی زندہ گسن. بہرحال اس دن کے لیے آپ کو کیا توشہ ساتھ لانا ہے. بہرحال سہ توشہ یس زن سہ انفاق فی سبیل اللہ. بہرحال بہترین مثال اللہ تبارک و تعالیٰ تمن لکن ہز بیان کرن یم لوک زن اللہ تبارک و تعالیٰ سن وتہ مز خرچ کرن. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. کمثل حبۃ. ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی شخص نے ایک دانہ بویا. یعنی تمن لکن ہز مثال یم اللہ تبارک و تعالیٰ سز وتہ مز پن مال خرچ کرن تہذ مثال یسی کہ ایک شخصن ترو بیل پھول زمینس مز. انبتت 7 سنابل. اور ات بیل پھلس آئی 7 ہیل کھست. فی کل سنبلۃ 100 حبہ. اور پریت ہیلس درائے 100 یم زن دانہ. واللہ یضاعف لمن یشاء. اور اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتا ہے. واللہ واسع علیم. اور اللہ تبارک و تعالی
वसत वाला भी है और जानने वाला भी है। बहरहाल यथ आय मुबारकहस मज अल्लाह तबारक व तआला सज वत मज खर्च करनच मिसाल आमज अकिस बेल फलिस सत दिन। हदीसस मज आमुत फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सदका करने से माल बढ़ता है, कि सदका करने से हसा माल बढ़। बज़ाहिर इंसानस बासन कि मोन माल गो कम, या अगर कैलकुलेटर लागो या अगर कंसी माहिर मईशतस वनो या इकोनॉमिस्टस कंस वनो कि माल खर्च करने से क्या गसन, बहरहाल उसका जवाब होगा कि माल खर्च करने से माल कम होता है। मगर अल्लाह तबारक व तआला फरमान कि येल तह अल्लाह ताला सं वत मज माल खर्च करियो, यानी वो शख्स जो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता है, तम सं मिसाल तिसै यथ पाठन जन अख किसान बेल फुल त्रावन कथ मज जमीनस मज। मसलुल लदीना युनफिकूना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में। बहरहाल इससे क्या मुराद है, अमिच तशरीह पात कुनत गमज। ये जहाद फी सबीलिल्लाह भी हो सकता है, यह तुम इदार यम जन इस्लाम के बका खतर तामीर कर, यह यथे पाठनस इस्लाम की बका खतर या दीन की बका खतर यस काम कर, उन मदों में जो भी खर्च किया जाएगा बहरहाल उसका इतला किस पर होगा, फी सबीलिल्लाह। इथे पाठनस मोहताजन पे, मिस्कीनन पे और फुकराहन पे और कैदियन पे और ये मुसाफिर आसन उन पर भी जो माल खर्च किया जाएगा, बहरहाल ये सारे ये जो मद हैं ये आते हैं किसमें, फी सबीलिल्लाह। और अल्लाह ताला फरमान कि तमिस शख्स सं मिसाल युस पनुन माल फी सबीलिल्लाह यानी यमन मदन मज खर्च करन छ, कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल, उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक किसान ने एक बीज जमीन में बोया, यानी अमिस तशबीह आमज दिन कमिस किसान से। अंबतत सबअ सनाबिल, और इस बीज से कितने कोपल फूट उठे, 7 फेल द्राय अथ, यानी अल्लाह तबारक व तआला अथ अकिस बेल फेलिस यथ पाठनस अल्लाह तबारक व तआला अथ ये वसत या अथ ये ताकत दितमुत कि बेल फलिस नेरन 7 हेल, बल्कि ये तो मिसाल है, 7 हेलियों खो ज्यादा हकन दित। बहरहाल यथ पाठन अथ वसत दिस अल्लाह तबारक व तआला, यथ पाठन अथ मल्टीप्लाई को रब्बुल आलमीन। तो अल्लाह हमें समझाना चाहता है कि जो माल आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो ये असल में कम नहीं होता है, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला बिल्कुल इस बीज की तरह, जिस तरह उससे 7 कोपल फूट उठे और हर कोपल में से 100 दाने बन गए या फूट उठे, तो इसी तरह आपका माल भी अल्लाह के इस बैंक में बहरहाल जमा ही नहीं बल्कि सूची मल्टीप्लाई गसन। वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह चाहे तो इससे भी ज्यादा बढ़ा सकता है, यानी सारे खुद कम युस जन बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला देता है। बहरहाल कुरान पाकस में 20 जाए आमुत कि मन जा बिल हसनति, जो कोई अल्लाह के पास एक नेकी लेकर आएगा तो युस जन तमिस क्या करे, अल्लाह तबारक व तआला फरमावन कि उसे हम 10 गुना बढ़ा कर देंगे, यानी तमिस दिमो अस कुता 10 गन, फलहु अश्रु अमसालिहा, उसके लिए 10 गुना ऐसा ही अजर होगा। ये कम खोद कम दर्ज युस जन इन्फाक फी सबीलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला। और यहाँ पर अल्लाह ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा अगर अल्लाह इसको बढ़ाए तो कितना गुना, 700 गुना। बल्कि अल्लाह ताला फरमाए वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह चाहे तो इससे भी बढ़ा सकता है, यानी इखलास यमिस ज्यादा आइस और जिसका माल जितना प्योर होगा और जितना इखलास होगा और जमाने के लिहाज से भी, वक्त के लिहाज से भी और जगह के लिहाज से भी सदकात और खैरात या अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में इजाफा होता है। इस पर हदीस में आमुज कि सदकात या अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए सारे खुद युजन दर्जात बुलंद गसन वो रमजान का महीना है, यानी रमजान के महीने में अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का ज्यादा सवाब है। इसी तरह हदीस में आया है कि युस शख्स अख नीकी हिंस काम हरम पाकस मज कर, बहरहाल उसे 1 लाख गुना बढ़ा दिया जाता है।
गो वक्त के हिसाब से और जगह के हिसाब से भी अल्लाह तबारक व तआला सदकात में या अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में या किसी नेकी का अजर बढ़ाता है। मगर आम उसूल कि अल्लाह नेकी का दर्जा जो है 10 गुना बढ़ाकर बंदे को देता है और चाहे तो 700 गुना भी बढ़ाकर दे सकता है। ये डिपेंड कर कत पे इंसान के इखलास पर और वो कौन सा माल कहाँ पर किस जगह पर और कब खर्च करता है। बहरहाल अल्लाह ताला फरमान वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह वुसअत वाला है। वुसअत वाला से मुराद क्या है? चाहे तो इससे भी बढ़ाकर आपको अजर दे सकता है। अलीम, और जानता भी है कि आपने किस नीयत से ये माल अल्लाह के रास्ते में खर्च किया है। यानी सु छ तुहंदन दिलन ते जानन कि आपने लोगों को दिखाने के लिए माल खर्च किया या वाकई आपने अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के दीन की बका के लिए इस माल को खर्च किया। बहरहाल उलमा ने इस आयत से यह आयत अल्लाह तबारक व तआला ये वन अत मे रब्बुल आलमीनन अकिस इंसान सं मिसाल जिस रब्बुल आलमीन सं वत मज माल खर्च करन उसकी मिसाल उस दाने से दी है जिस दाने को एक किसान कहाँ पर बोता है, जमीन मज त्रावन। अब इससे उलमा ने कुछ मसले भी निकाले हैं और अच मजीद वजाहत कर उलमाओ दपन ये मिसाल ये इतनी खूबसूरत मिसाल है कि एक एक बात इसकी, एक एक हर्फ इसका ये बहरहाल इन्फाक फी सबीलिल्लाह पर फिट बैठता है। किस पहला कहा गया कि अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने की मिसाल एक बीज की सी है। यानी ये ब्योल अगर हम इसको जमीन में डालेंगे, बताओ इसमें से एक पौधा कब पैदा होगा? ये बीज गोड़ वायबल आस, ये अत बिल्कुल असल क्वालिटी हुंद ब्योल आस। वरना अगर ये कशिर पे वन शोड़ ब्योल ओस, या अगर ये होतमुत ब्योल ओस, या अगर ये खोखल ब्योल ओस, बताओ इससे कोई बीज या कोई क्या वन पैदावार पैदा हो सकती है? बहरहाल उलमा लिखते हैं बिल्कुल यही मिसाल इन्फाक फी सबीलिल्लाह की भी है। यानी अल्लाह के रास्ते में जो माल आप खर्च करोगे उससे कोपले तब फूटेंगी, उससे तब आपको फायदा होगा ये बेल फुल गोड़ वाकई बेल फुल सेहतमंद बेल फुल। यानी इससे मुराद है कि ये बीज या ये इन्फाक जो आपने किया ये हलाल माल से होना चाहिए। ये गस कम पे आसन यिथ पाट होत खतर शरत कि सु गस सेहतमंद आसन सीड, सु गस आसन बिल्कुल बीमारियों निश खाली सीड। यहाँ भी एक शरत है कि युस बेल फुल युस इन्फाक तुम करू, बहरहाल इसके लिए पहली शरत है कि ये गस हलाल माल से आमद कर। इसीलिए हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि अल्लाह तबारक व तआला उस सदके को हरगिज कबूल नहीं करता है जो सदका हराम माल से दिया गया हो। गोश तशबीह अत मज। दूसरी तशबीह दयम कि अगर ये बेल फल त्रावन बंजर जमीन मज, बताओ क्या ये बंजर जमीन में उगेगा ये बीज? ना, ये जैन, बल्कि अम खतर क्या गड़ कर हम पहले जमीन को तैयार करते हैं, तथ गड़ बाज़ाब्त खनन, तथ खाद त्रावन, तथ वक्तन फवक्तन आब दिवन। तो यहाँ पर भी अगर ये माल आपका सही था, बीज और सही हलाल माल था, मगर आपने उस जमीन में लगाया जो बंजर जमीन थी, यानी मुराद इससे है कि आपने उस आदमी पर या आपने उस इदारे को या आपने उस मद में अपने माल को खर्च किया जो वाकई उसका मुस्तहिक नहीं था, तो ये सदका भी या ये माल भी आपका अल्लाह तबारक व तआला कबूल नहीं करेगा। इसलिए अमिक एहतमाम, पहले हलाल रिज़्क हो, हलाल माल हो, दूसरा ये हलाल माल फिर देखना है कि हमें कहाँ पर खर्च करना है। अगर कहीं इंसान उसने हलाल माल लाया और हलाल माल पत दुतन तिथिस इंसानस पानुन ये माल जो प्रोफेशनल गदागर आस, यम जन कारबार पन बनोमुत क्या गदागरी हुन। अब इसने इस बात की तहकीक नहीं की कि मैं ये माल कहाँ सरफ करता हूँ, तो इस सदके का या इस इन्फाक का भी इस आदमी को बहरहाल कोई फायदा नहीं होगा। अवश्य उलमा ने लिखमुत कि यह कितनी खूबसूरत मिसाल है कि अल्लाह ने बीज के साथ किसको तशबीह दी है? इन्फाक फी सबीलिल्लाह को। इसलिए तवज हदीस में आमद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि कयामत के दिन एक शख्स तब तक अल्लाह के हुजूर हट नहीं सकता जब तक कि वो 5 चीजों का या 5 सवालों का जवाब नहीं देगा। उसमें एक सवाल ये भी होगा
कि माल कहाँ से कमाया। बहरहाल वो हलाल और हराम के बारे में वहां पर सवाल होगा, मगर फिर इसके बाद एक और सवाल होगा, जो माल कमाया वो कहां पर खर्च किया। वो दूसरा सवाल भी जरूरी है। एक तो माल कहां से कमाया, वो हलाल या क्या ना हराम, मगर फिर हराम अगर हलाल है तो इस हलाल को भी कहां पर खर्च किया। बिल्कुल बेल फुल स्योद, मगर यह त्रो बंजर जमीनस मज कि त्रो जरखेज जमीनस। वो आपको तब फायदा देगा अगर आपके पास जरखेज जमीन, वरना अगर हम त्रावन आड़स मज त्रावन कहीं बंजर या जमीनस मज कहीं आड़स मज त्रावन ब्योर, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां से हमें 700 बालियां या वहां से हमें बेहतरीन पैदावार हासिल होगी। तो इसीलिए ये मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर दी है। अवश्य अख शख्स वो अपना माल हलाल तरीके से कमाता है, फिर एक ऐसे शख्स को देता है, दपन मे इंतहाई गरीब कोर यह नख वाल, मगर सती वहां पर वो ये माल पटाखों में और डेकोरेशन में और बाकी खुराफात में खर्च करता है, तो याद रखिए कि इस शख्स को इसका कोई सवाब नहीं मिलेगा। तिकाज जहां आपको हलाल माल का भी एहतमाम करना है, वहां आपको यह भी देखना है कि ये माल कहां पर खर्च हो रहा है। वो तवे वन कि इनकी मिसाल उस बीज की सी मिसाल है जिसमें से 700 बालियां उग आती हैं। दयम का उलमा ने लिखा, इसमें एक और मिसाल भी है। यम सातन ये बीज त्रावन, चलिए अब हमारे पास सेहतमंद बीज भी है, यानी हलाल तरीको कमो अस माल ते, अब हलाल जगह पर भी इसको डाला, मगर युत योतन काफी कि अम पे बन अस फुल ज़रात नहीं, अब इसकी वक्त वक्त निगरानी भी करनी है। पत जन जमींदार आसे सह गस वक्तन फवक्तन निगरानी ति कर कि अत मा त्रेश जरूरत, आब जरूरत, अत मा जानवर युस नुकसान वातना, या इथे पर इसको तारबंदी की भी जरूरत है, इस आम कर। तो उलमा ने लिखा है इसी तरह आपको भी अपने सदके की या अपने इन्फाक की हिफाजत करनी होगी। क्या हिफाजत करनी होगी, यानी अब आपको एहसान जताकर, अब आपको इस जिसके पर आपने इन्फाक है अमिस मिन्नत थावी कह, अमिस बाज़ाब्त हट हे यथ वन यह लागो कत, अब अमिस थो एहसान, मे फलान वक्तन कोर्मुत यथ पे सोच, मे फलान वक्तन कोर्मुत मदद, अब उससे हम बेगार के काम लेंगे। बहरहाल ये गो पन सदक खराब तो बर्बाद। यही है कि अपने इस पैदावार की हिफाजत करना। अच्छा, कभी ऐसा भी हो गया कि इसका नाम इन किसान, अब बीज का भी इंतखाब सही हो गया, अब जमीन का भी इंतखाब सही हो गया, इसने हिफाजत भी इसकी की, यानी कहाँ कोई अत पे थो मिन्नत अमिस का, या कोई तकलीफ नहीं दी जिस पर ये माल खर्च किया। मगर कभी ऐसा भी होता है कि अत पैदावारस पे आसमानी आफत युवन, अब इंसान को इंसानी इन आफात का भी तदारुक करना होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला शेतन मिसाल जरिए समझान कि ए बंदा युस माल म्याय वत मज खर्च करे, इसको आपको आसमानी आफात से भी बचाना है। जिस तरह आप फसल को बचाते हैं, उसके लिए क्या इंतजाम है, यानी तिस अमल कर यम से सोरी चोन इन्फाक एक लम्हे में उस आफत की तरह खत्म हो जाए। और वो कौन सा अमल है, वो शिरक है, यानी शिरक निशी पन पान थाउन बचाइथ, तिकाज शिरक ऐसा अमल है जिस तरह नागहानी आफत उस फसल को बर्बाद करती है, उसी तरह शिरक आपके तमाम आमाल को जाया कर सकता है। अवै आयतन ये मिसाल दिन, मसलुल लजीना युनफिकुना अम्वालहुम फी सबीलिल्लाह, उन लोगों की मिसाल जो अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल, उनकी मिसाल उस बीज की तरह है जो बीज जमीन में डाला गया और उससे कितने कोंपल, 7 कोंपल या 7 हेल द्राय तोड़, फी कुल्ल सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, और प्रत्येक हेलिस द्राव 7 दान, यानी 700 गुना बढ़ा दिया गया। बहरहाल यहाँ से हमें भी इशारा आमदन, तरगीब आमदन कि अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से बुनियादी तौर पर माल बढ़ता है, ये कम नहीं होता है। हदीस मज आमुत हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रवायत करन कि फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस माल में ज़कात मिली हुई रहे, यानी सो माल यमिक ज़कात ये करने के बल्कि ज़कात रोज तथ। अब रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये ज़कात इस पूरे माल को हलाक करके रखेगी,
यानी ये ज़कात इस कालने रूद, इसकी वजह से इसका सारा ये माल क्या हो जाएगा, हलाक। अवै ज़कातस मुतलिक आमद वन, ज़कात लफ्जी मायने पाक करना, क्योंकि ये ज़कात निकालने से वो बाकी माल जो है वो क्या हो जाता है, पाक हो जाता है। और एक मतलब इस ज़कात का है ज़तियुन माने हिफाजत करना, कि इस ज़कात की वजह से बाकी माल की क्या हो जाती है, हिफाजत हो जाती है। अवै अल्लाह ताला फरमान कि यहाँ पर हमें इशारा भी दिया गया है कि अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से बुनियादी तौर पर माल कम नहीं होता है बल्कि माल बढ़ता है। और हदीस में आमद फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो कि जहन्नम के आग से अपने आप को बचाओ, जहन्नम के नार निश बचाओ पनुन पान, अगर हो सके तो खजूर का एक टुकड़ा देकर, यानी अगर कुछ भी नहीं हो कम से कम खजूर का एक टुकड़ा ही सदका करो, उसके जरिए अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। रवायत में आमद सहाबी आकाव रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निश, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर मुसलमान पर सदका करना वाजिब है, प्रेत मुसलमानस पे सदका करन वाजिब। साहबन को अर्ज, साहबीन को अर्ज, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी के पास कुछ ना हो, अगर न काश निश कहीं आस, सो क्या करे सदका, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो अपने हाथों से कमाए और फिर उस कमाई में से सदका करे, यानी सो कमाइन पानिया अथों से मेहनत मशक्कत करें और उसके बाद उसमें से इन्फाक करे। साहबीन को अर्ज, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ना काश यीज ती इस्तिताअत अस, यानी वो कमा भी नहीं सकता हो, तेल क्या करे, बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाओ फिर वो नेकी का हुक्म करे, तेल करिन से नेकी हुंद हुक्म और नेक काम करे, सो करी नेक काम बीगिर नेकी हुंद हुक्म, बुरे कामों से बचे और बुराइयों से रोके, तो ये भी उसके हाँ सदका ही माना जाएगा। ये थी तमसन क्या मान। और हदीस में आमद फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो जब आदमी बेदार होता है, यदि इंसान सुपत वतन छ, हर जोड़ पर एक सदका वाजिब हो जाता है, प्रेत जोड़स पे अमिस इंसानस क्या गसन वाजिब, सदका शुक्र, क्या, क्योंकि इसको तो मौत तारी हो गई थी, आरजी मौत, क्योंकि नींद तो एक किस्म की आरजी मौत, लेकिन अल्लाह ने इसको एक और मौका दे दिया। अब इसके बदले में इस पर हर जोड़ पर क्या आयद होता है, सदका और शुक्र आयद होता है। और फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो रास्ते से तकलीफ चीज को हटाना यह भी सदका है, किसी सवार को सवारी पर सवार करना यह भी क्या है, सदका है। गो यमन जोड़न हिंद क्या सदका। और अकिस रवायत में बल्कि रवायत में फरमाया रसूलुल्लाह दिन के इब्तिदाई हिस्से में 2 रकात पढ़ना, और उलमा ने इससे इशराक मुराद ली है, यानी दिन के इब्तिदाई हिस्से में 2 रकात नमाज पढ़ना ये तमाम जोड़ों की तरफ से सदका है। ये सारे क्या जोड़ों की तरफ क्या, तो इससे पता चला कि नेक काम करना ये भी असल में क्या है, सदका है। और हदीस में आमद बार बार हम पढ़ते हैं कि नेक औलाद आसर ये भी क्या है, इंसान के लिए ये भी सदका जारिया है, क्योंकि ये भी एक नेक अमल है। तब फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तना आय तरगीब इस दिन कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से माल असल में कम नहीं होता है बल्कि माल बढ़ता है। और ये उलमा अमकिस तफसीरस में लिखमत इसके ज़ाहिरी असबाब भी हैं और इसके बातिनी असबाब भी हैं माल बढ़ने के। यानी ज़ाहिरी असबाब क्या, ज़ाहिरी असबाब ये है कि वाकई अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने से और माल भेजता है, 20 वजन अल्लाह तबारक व तआला, ये ज़ाहिरी सबब। और बातिनी असबाब भी हैं। बातिनी असबाब क्या है कि एक शख्स को अल्लाह तआला से वादे में 1 रुपए खर्च, अब इस 1 रुपए के बदले अल्लाह तबारक व तआला इससे वो बरकतें अता करता है कि अकिस रुपये में 7 हतन हिज काम नेरन। मिसाल के तौर पर एक शख्स की आमदनी है मिसाल के तौर पर 10 रुपए, अमिस अल्लाह तआला 1 रुपए अल्लाह तआला से वादे में खर्च, अल्लाह तबारक व तआला उन 9 रुपये में इतनी बरकत डालता है कि जो काम आम इंसान 700 रुपए में करते हैं इसका वो काम 1 रुपए में हो जाता है। ये थी गई ज़ाहिरी बरकत, और ये भी हो गया माल बढ़ता है इससे। इथे पठनस कहाँ शख्स अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बीमारियों से बचा के रखा है, अकिस इंसान सुन पोंछ लगन बीमारन, अमिस शख्स बीमारी पर पोंछ लगन, ये भी एक बातनी बरकत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके माल को इजाफा किया। इथे पठन कहाँ शख्स या कहाँ इलाका उनके हाँ माल में बिल्कुल तुम अल्लाह तआला ने दितमत ऊंट कुल बड़ सोरे क्या मगर माल ही वसन,
मगर ब्याक शख्स अमिस अल्लाह तबारक ताला लकटुई बाग दितमुत, मगर अल्लाह ने ऐसी बरकत दी है अमिस 3 पेट 4 पेट वसन। तो ये भी असल में अल्लाह ही की तरफ से फैसले होते हैं कि ये अल्लाह तबारक ताला इसके माल में क्या अता करते हैं, बरकत अता करते हैं। अवै शीतन आमद वन कि उसकी मिसाल ऐसी है कि अमिस द्राय 7 हेल 7 हेलन द्राय कस हाथ फैले। तो समझाने के यानी इसका माल बढ़ता ही है बल्कि घटता। और मुसलमान से सारे खुद बोल यकीन कि चाहे यहाँ माल बढ़े या ना बढ़े, मगर आखिरत में मेरे लिए ये सारा जखीरा हो रहा, और एक एक पाई का हिसाब और एक एक पाई के बदले अल्लाह तबारक व ताला वहां पर बेश बहा न्यामतें बल्कि बड़ा चढ़ा कर इसको वापस देने वाले। और कल ही हमने पढ़ा मंजल लजी युकरिजुल्लाह कर्जन हसना, कौन है जो अल्लाह को बेहतरीन कर्ज दे। वो जो हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं ये असल में क्या है, ये अल्लाह को हम कर्ज दे रहे हैं। और ये कर्ज इंशाअल्लाह मुस्तान कयामत में अल्लाह तबारक व ताला सूद समेत हमें वापस इनायत फरमाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने अभी कहा कि नेक काम करना ये भी सदका है, नेकी से रोकना ये भी क्या है, सदका है। तो उलमा ने लिखा है कि नेकी चूंकि सदका है तो जो शख्स नेकियों का एहतमाम करता है, गुनाहों से रुकना और गुनाहों से रोकना ये भी क्या है, सदका है। सदका से क्या होता है, माल बढ़ता है। तो जब एक इंसान एक नेकी करता है, अल्लाह ने कहा कि सदका से माल बढ़ता है तो उसको और नेकियों की तौफीक मिल जाती है। ठीक है, खुदा में ना बुशर बढ़ावन चाहिए। तो एक सदका एक नेकी की ये सदका है, वो एमसी के बड़ुन माल। तो जो शख्स नेकियों का एहतमाम करता है अल्लाह तबारक ताला उसे और नेकियों की तौफीक देता है। जो शख्स एक गुनाह से बचता है अल्लाह तबारक ताला उसे और गुनाहों से भी बचाता है। दयम का नेकी जो इंसान इस आयत से पता चलता है कि ये शख्स नेकियन हुन एहतमाम करे तो अल्लाह ने कहा कि मैं उसको बढ़ाता हूँ ज़ाहिरी तौर पर भी और बात ज़ाहिरी तौर पर वो एमिसी भी नेकियन हुन एहतमाम करना, एमिसी भी नेकियन हुन तौफीक दिया अल्लाह तबारक ताला। दूसरा, इसकी जिंदगी में भी बरकत होगी, यानी लोग 8-8 घंटे सोते होंगे, 9-9 घंटे सोते होंगे तो निंदर पूरे गसन, मगर ये शख्स जो नेकियों का एहतमाम करेगा इस मुत्तकी आयस, बहरहाल इसकी जिंदगी में ऐसी बरकत होगी। ये 2 ही घंटे सोता होगा मगर 8 घंटा खुद ज्यादा चाको चौबंद ऐसे। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला इसके माल में, इसकी औलाद में ऐसी बरकत देगा कि अगर इमिस अकोई नेचुत आयस मगर वो इतना फरमा बरदार होगा कि 10 बच्चे वहां से किसी के हैं मगर उसको वो आराम और वो राहत नसीब नहीं होती है। बहरहाल ये इन तमाम आयात लुबाब कि अल्लाह तबारक व तआला फरमान कि जो शख्स अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करता है, बहरहाल उसकी मिसाल उस दाने की तरह है, या तिमिस किसान से मिसाल कि उसने बीज में एक दाना, इस जमीन में एक बीज बोया या दाना बोया, उसमें से 7 कोंपल फूट उठे, उन 7 कोंपलों में से 100 दाने बने, यानी अल्लाह तबारक व तआला 700 टाइम्स बल्कि अमखोत ज्यादा दिवन। अल्लाह ताला फरमान वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह चाहे तो इससे भी बढ़ा सक। उसके मैंने कहा कि वक्त और जगह से भी सवाब में बढ़ोतरी होती है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह वसत वाला भी है। वसत वाले से मुराद क्या है, यानी वसत से यहाँ मुराद है कि अल्लाह चाहे तो इससे भी ज्यादा वसी अजर आपको अता कर सकता है। और वसत से मुराद ये भी है कि अल्लाह चाहे तो इससे भी आपको ज्यादा माल अता करता है। और अलीम भी है। अलीम से क्या मुराद है, अलीम से मुराद है कि वो आपके दिलों के हालों को जानता है, वो आपकी नीयतों को पूरा और खूब जानता है कि आपने किस नीयत से इस माल को खर्च किया। आपने अल्लाह की रजा के लिए इस माल को खर्च किया या आपने लोगों को दिखाने के लिए इस माल को खर्च किया। आखिरी हदीस या फिर जन आजुक दरस में इख्तिताम गस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो 3 शख्स ऐसे हैं जिनकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला कयामत में एक नजर रहमत भी उठाकर नहीं देखेंगे। 3 शख्स तुम यमन हदीस में आया, मुस्लिम शरीफ रिवायत और तबरानी में भी ये रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो 3 शख्स ऐसे, यानी 3 शख्स से मुराद 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ जिनसे अल्लाह तबारक व तआला कयामत के दिन न तो बात करेगा और न तो उनकी तरफ रहमत की निगाह भी उठाकर देखेगा। उनके बारे में सबसे पहला शख्स वो होगा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता होगा मगर साथ साथ एहसान भी जतलाता होगा। यानी हदीस में चाहे मन्नान कहते हैं मिन्नत रखने वाले को, जतलाने वाले को, यानी सो शख्स जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता होगा मगर खर्च करने के साथ साथ फिर क्या करता होगा, एहसान जतलाता होगा। बुझता
اگر میں امس شکست لاتس دتو تمن دون یہ مودمت یا عام ہم کہتے ہیں اتھے پہ کن سات میں رسوا کر بری مجلس میں ثوگ نا سوئی یمن دہن میں کری حل اگر میں ایسی کور خبر کت آسہ یہی ہم الفاظ کہتے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے شخص کی طرف اللہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا نہ ان سے بات کرے گا. دویم شخص جو اپنا ازار یا تہبند ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے. اور تریم فرمو تیسرے کے بارے میں الگ الگ روایات ہیں. اکس روایتس مجھ جو اپنے والدین کا نافرمان ہوگا اس زن پنن والدین ہند کیا آسہ نافرمان اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امن ترین شخصن متعلق وچھنے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نظر سے. بہرحال اس لیے یہ ہمارے لیے چشم کشا حدیث ہے کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور کرنا چاہیے مگر پہلے ہمیں اپنی نیتوں کو اور اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ سند رضا خاطر یہ کرن کن تکیاز نیکی کرنا آسان ہے مگر نیکی کی حفاظت کرنا یہ انتہائی مشکل ہے. رب العالمین منگو دعا کہ سدین یمن یت آئے مبارکہ پر عمل کرنے توفیق. آگے جو 2-3 آیات ہیں وہ اسی مضمون کو اور آگے چلائیں گے کہ انفاق کیسے کرنا چاہیے کن چیزوں سے بچنا چاہیے اور مومن اس کے انفاق میں اور جو کافر ہوتا ہے یا وہ شخص جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے اس کے انفاق میں کیا فرق ہوتا ہے. رب العالمین منگو دعا کہ سدین زیادہ کو زیادہ اللہ تعالیٰ سے عمل یہ انفاق کرنے توفیق. واخر دعوانا ان الحمد للہ.